Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Today we will start the topic balance of payments. In last lecture, we have defined international trade and difference between domestic and international trade, absolute and comparative advantage. थ्योरीज को हमने डिटेल में डिस्कस किया था और उसके बाद हमने मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड देखा था. तो आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे दैट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट. दैट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स. तो लास्ट टाइम हमने उसका एक पार्ट कंप्लीट किया था और आज हम इसका सेकेंड पार्ट कंप्लीट करेंगे. इन दिस टॉपिक वी विल कवर कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड आइडेंटिफाई द वेज टू ओवरकम डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ payments. Definition. The balance of payments of a country is a systematic record of its receipts and payments in international transactions during a given year. Balance of payment किसी भी कंट्री का एक रिकॉर्ड होता है जिसमें उसकी रिसीविंग और पेमेंट्स इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन की होती हैं during a 1 year. We can say that balance of payment is a record of country's external trade with the rest of the world during a year. Its main purpose is to provide the aid to banks, firms and individuals engaged in international trade and finance in their business decisions. The balance of payment of a country is constructed on the principle of double entry bookkeeping. इसको आगे अभी हम देखते हैं. Each transaction is entered on the credit and debit side of the balance sheet. When a payment is received from foreign country, it is credit transaction, while payment to foreign country is a डेबिट ट्रांजैक्शन. बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारे पास बेसिकली एक बैलेंस शीट होती है. उस शीट के ऊपर दो साइड्स होती हैं, एक रिसीविंग साइड और एक पेमेंट साइड. रिसीविंग साइड मींस कि जब हम इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसके बदले में जो हमारे पास इनकम आती है दैट इज रिसीविंग और दैट इज कॉल्ड क्रेडिट. और पेमेंट साइड में हम जब इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसके बदले में जो पे करते हैं दैट इज पेमेंट साइड और डेबिट साइड. तो हम क्रेडिट और डेबिट साइड को साइड बाय साइड उसमें देखते हैं और उस शीट को बैलेंस करते हैं कि हमारी रिसीविंग और हमारी जो पेमेंट है वो कितनी कम या ज़्यादा है. द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स ऑफ ए कंट्री कंसिस्ट ऑफ following 3 types of accounts: current account, capital account and official reserve account. Current account. Current account determines the national income, output and employment. Balance of payment में जो फर्स्ट हमारे पास अकाउंट होता है करंट अकाउंट, वो हमारी नेशनल इनकम को डिटरमिन करता है. The current account of a country consists of all transactions relating to trade in goods, services and unilateral transfers. Goods means कि जो tangible goods हैं, wheat है, rice है, machines हैं, etc. And services means जो intangible हैं, travel, tourism, insurance, banking, education, health, etc. And unilateral transfers means donations, pensions, grants, gifts, remittances, etc. तो करंट अकाउंट में हमारे पास ये तीनों चीज़ें आ जाती हैं. इन द करंट अकाउंट एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स ऑफ गुड्स इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आइटम. इसमें एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट्स को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है. In this account, the exports of goods and services and transfer receipts are entered as credit because they represent receipts from foreigners. जब भी हम एक्सपोर्ट करते हैं तो उसका मतलब उसके बदले में हम रिसीविंग ले रहे हैं, तो दैट इज द credit part. On the other hand,
the imports of goods and services and transfer payments to foreigners are entered as debits because they represent payments to foreigners. और जब भी हम कोई चीज़ इंपोर्ट करते हैं तो उसके बदले में पे कर रहे होते हैं फॉरेन कंट्री को, तो दैट इज डेबिट साइड. बैलेंस ऑफ ट्रेड, द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स ऑफ विजिबल आइटम्स ऑफ ए कंट्री कॉल्ड इट्स बैलेंस ऑफ ट्रेड. इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स के दरमियान जो डिफरेंस होता है उसको हम कहते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड. Second is capital account. Capital account determines the position of a country whether it is a borrower or a lender. Current account हमें national income के बारे में बताता है. Capital account हमें ये बताएगा कि country जो है वो borrow करता है या lending भी कर सकता है. Capital account of a country consists of all transactions in financial assets in the form of short-term and long-term lending, borrowing and private and official investments. इसमें हम short-term और long-term borrowing and lending के बारे में पढ़ेंगे और private और public investment को भी देखते हैं. The capital account shows the international flow of investments and represents the country's assets and liabilities. इसमें हमें ये 6 terms दी हुई हैं. Short term capital receipts means foreigners purchase Pakistani private and official securities which duration is 1 year or less than 1 year. Short term का मतलब होता है less than 1 year या 1 year. तो कैपिटल रिसीट्स का मतलब रिसीविंग हो रही है, तो इसका मतलब फॉरेनर्स हमें पे कर रहे हैं या हमारी चीज़ को परचेज कर रहे हैं. तो जो 1 साल या 1 साल से कम अरसे में वो परचेज कर रहे हैं, दैट इज शॉर्ट टर्म कैपिटल रिसीट्स. लॉन्ग टर्म कैपिटल रिसीट्स मीन्स फॉरेनर्स परचेज पाकिस्तानी प्राइवेट एंड ऑफिशियल सिक्योरिटीज विच ड्यूरेशन इज मोर देन 1 year. लॉन्ग टर्म का मतलब होता है मोर देन 1 year और इसमें प्राइवेट भी, ऑफिशियल मीन्स कि गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज भी आ जाती हैं. बोरोइंग फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज मीन्स पाकिस्तान बोरोज फ्रॉम द वर्ल्ड मार्केट बायलैटरली और मल्टीलैटरली. बोरोइंग फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज का मतलब पाकिस्तान बाहर के कंट्रीज से बोरो करता है, उसमें बायलैटरली का मतलब 2 कंट्रीज से भी और मल्टी मीन्स 2 से ज़्यादा कंट्रीज के साथ भी वो बोरोइंग कर सकता है. एंड lending to foreign countries means Pakistan lends to the world market bilaterally or multilaterally. Short-term capital payments means Pakistani purchase foreigners' private and official securities which duration is 1 year or less than 1 year. अभी ऊपर हमने शॉर्ट टर्म कैपिटल रिसीट्स पढ़ी थी जिसमें फॉरेनर्स पाकिस्तानी सिक्योरिटीज़ को परचेज करते हैं. अब हम शॉर्ट टर्म कैपिटल पेमेंट्स पढ़ रहे हैं, तो इसमें अब हम पे कर रहे हैं फॉरेनर्स को, तो हम परचेज करेंगे. दैट ड्यूरेशन इज 1 year or less than 1 year. And long term capital payments means Pakistani purchase foreigners private and official securities which duration is more than 1 year. तो हम जो चीज़ परचेज करेंगे और उसका ड्यूरेशन मोर देन 1 year हो तो दैट इज लॉन्ग टर्म कैपिटल पेमेंट्स. तो ये 6 टर्म्स इसमें इंक्लूड होती हैं. In capital account, borrowing from foreign countries and direct investment by foreign countries represent capital inflow or credit because they are receipts from foreigners. अब हम जो 3 अकाउंट्स पढ़ेंगे, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट, इन तीनों में हमने
क्रेडिट और डेबिट साइड को भी बताना है। जैसे अभी हमने करंट अकाउंट में बताया, अब हम कैपिटल अकाउंट में बता रहे हैं। तो इसमें जो फॉरेन कंट्रीज से हम बोरो करते हैं, दैट इज कैपिटल इनफ्लो और क्रेडिट, एंड ऑन द अदर हैंड lending to foreign countries and direct investment to foreign countries represents capital outflows or debit because they are payments to foreigners। तो इसमें भी हम डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों को बताएंगे। थर्ड, ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट। द ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट और ऑफिशियल सेटलमेंट अकाउंट shows that to correct the balance of payment how much reserves a country has। इसके नेम से देखें, ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट का मतलब इस अकाउंट में हमारे कंट्री के कितने रिजर्व्स हैं कि हम उसे अपने डेफिसिट टाइम पीरियड में यूटिलाइज कर सकें। द ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट इज इन फैक्ट ए पार्ट ऑफ द कैपिटल अकाउंट। The official reserve account demonstrate transactions in countries' official reserve assets। के कंट्री का जो ऑफिशियल रिजर्व एसेट है उसका ये अकाउंट होता है। This account measures the changes in nations' liquid and non-liquid liabilities to foreign official holders and the change in nations' official reserve assets during the year। The official reserve assets of a country includes its gold stock, holding of its convertible foreign currencies and SDRs. SDRs means special drawing rights. It is the currency of IMS, also called paper gold, or SDR is a loan from IMF without interest, or ODRs। ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट में हमारे पास गोल्ड स्टॉक आ सकता है, एसडीआर्स आ सकते हैं, या ओडीआर्स। ओडीआर्स मीन्स ऑर्डिनरी ड्राइंग राइट्स। ये भी हमारे पास आईएमएफ की तरफ से एक लोन होता है जो कि विदाउट इंटरेस्ट होता, जो कि विद इंटरेस्ट होता है, एंड इट्स नेट पोजीशन इन द आईएमएफ। द सम ऑफ करंट एंड कैपिटल अकाउंट इज नोन एज द बेसिक इक्विलिब्रियम इन the balance of payment। The balance of payment account of a country A is constructed as under। अगर हम करंट और कैपिटल अकाउंट को सम कर लें तो हमारे पास एक बेसिक इक्विलिब्रियम आ जाता है कि हमारा जो अकाउंट है वो बैलेंस है। हमें एक कंट्री का बैलेंस ऑफ अकाउंट दिया हुआ है, यहाँ पर ये एक बैलेंस शीट नज़र आ रही है हमें। इसमें देखिए सबसे ऊपर क्रेडिट साइड दी हुई है एक, और एक डेबिट साइड दी हुई है। क्रेडिट प्लस मीन्स कि हमारे पास इनकम आ रही है, एंड डेबिट माइनस मीन्स कि हमारे पास से, हमारी कंट्री से इनकम जा रही है। तो क्रेडिट मीन्स रिसीट्स, रिसीविंग, एंड डेबिट मीन्स पेमेंट्स। अब इसके नीचे दो हमें पॉइंट्स दिए हुए, करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड पे हमारे पास एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स हैं, एक्सपोर्ट्स ऑफ सर्विसेज हैं, एंड ट्रांसफ़र रिसीट्स हैं कि बाहर के कंट्री से जो हम रिसीविंग ले रहे हैं। एंड डेबिट साइड पर इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स हैं क्योंकि उसके बदले में हम पेमेंट कर रहे हैं, एंड इंपोर्ट्स ऑफ सर्विसेज हैं, एंड ट्रांसफ़र पेमेंट्स हैं। तो करंट अकाउंट में हमने इन तीनों चीज़ों की इनकम पढ़ी थी, गुड्स, सर्विसेज एंड ट्रांसफ़र पेमेंट्स और ट्रांसफ़र रिसीविंग्स। तो ये तीनों चीज़ें हमारे पास दोनों साइड पे आ गई। उसके बाद कैपिटल अकाउंट, शॉर्ट टर्म कैपिटल रिसीट्स। अब क्रेडिट साइड पर रिसीविंग आएगी तो उसमें शॉर्ट टर्म कैपिटल रिसीविंग, लॉन्ग टर्म कैपिटल रिसीट्स, एंड बोरोइंग फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज कि जब हम बोरो करते हैं तो फॉरेन कंट्री से इनकम हमारे पास आती है। और डेबिट साइड पे शॉर्ट टर्म कैपिटल पेमेंट्स जो हम उनको पे करेंगे, लॉन्ग टर्म कैपिटल पेमेंट्स, एंड लेंडिंग टू फॉरेन कंट्रीज। उसके बाद ये एक अपर पोर्शन था इस बैलेंस शीट का। इसके नीचे आपको एक लाइन नजर आ रही है, और उस लाइन के नीचे एक और अकाउंट है
दैट इज ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट। इसमें हमारे पास परचेज ऑफ फॉरेन करेंसीज एट ऑफिशियल लेवल दैट इज क्रेडिट साइड एंड पेमेंट ऑफ फॉरेन करेंसीज एट ऑफिशियल लेवल दैट इज डेबिट साइड, and borrowing of SDRs or ODRs from IMF that is credit, and repayment of loans to SDRs or ODRs from IMF that is payment side और debit side। तो इस शीट के दो पार्ट है हमारे पास। फर्स्ट पार्ट में 2 अकाउंट्स हैं, करंट एंड कैपिटल अकाउंट, और सेकेंड पार्ट में ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट इज इक्वल टू करंट अकाउंट प्लस कैपिटल अकाउंट। अगर हम ऊपर 2 अकाउंट्स को प्लस कर लें और इसका सम हमारे पास इक्वल आ जाए तो इसका मतलब हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट इक्विलिब्रियम में है। इन द अबव टेबल वी हैव 2 पार्ट्स, autonomous transactions and accommodating items. Current and capital accounts are known as autonomous transaction and these have profit motive. इस टेबल में जो अपर पोर्शन है लाइन से अबव दैट इज ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन। करंट एंड कैपिटल अकाउंट्स आर कॉल्ड आइटम्स अबव द लाइन। तो यहाँ पर देखें इस लाइन से अबव जो आइटम्स हैं करंट एंड कैपिटल अकाउंट। ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट इज कॉल्ड आइटम्स बिलो द लाइन। तो इस टेबल में जो बिलो द लाइन आइटम है दैट इज ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट। The sum of balances on the 3 accounts always equals 0. To pay for our current account deficit, either we must borrow more from abroad than we lend abroad or use our official reserve to cover the shortfall. Types of balance of payment. Balance of payment की 3 टाइप्स हैं हमारे पास। फर्स्ट फेवरेबल, सेकेंड unfavorable and third equilibrium balance of payment. Favorable or surplus balance of payment. If receipts side of the balance of payment is greater than its payment side, the balance of payment is in surplus of or favorable. अगर हमारी credit side ज़्यादा हो, debit side कम हो तो इसका मतलब वो favorable है। If receipt side of balance of payment is less than its payment side, the balance of payment is in deficit or unfavorable. तो unfavorable या उसको हम deficit balance of payment कहते हैं। And equilibrium balance of payment, if receipt side of balance of payment is equal to its payment side, the balance of payment is in equilibrium. अगर receiving और payments या डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों इक्वल हो जाएं तो इसका मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट इक्विलिब्रियम में है। उसके बाद कॉजेस ऑफ डिसइक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। सरप्लस और डेफिसिट इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट इज नोन एज डिसइक्विलिब्रियम। जब हमारा क्रेडिट और डेबिट साइड इक्वल हो दैट मीन्स इक्विलिब्रियम, और अगर उनमें से एक ज़्यादा और दूसरा कम हो तो उसका मतलब या तो सरप्लस है या डेफिसिट है, तो इस केस को हम डिसइक्विलिब्रियम कहते हैं। नॉर्मली इन LDCs लेस डेवलप्ड कंट्रीज बैलेंस ऑफ पेमेंट इज इन डेफिसिट। देयर आर मैनी फैक्टर्स दैट ब्रिंग डिसइक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट, और इसकी 2 हमें कॉजेज दी हुई हैं। फर्स्ट, लो एक्सपोर्ट्स कैपेसिटी एंड एक्सेसिव इंपोर्ट्स नीड्स। कि बैलेंस ऑफ पेमेंट डिसइक्विलिब्रियम में क्यों होता है, क्योंकि, और हमेशा डिसइक्विलिब्रियम मीन्स के डेफिसिट में क्यों होता है, क्योंकि हमारी एक्सपोर्ट्स कम होती हैं और इंपोर्ट्स ज़्यादा होती हैं। तो हमारी एक्सपोर्ट्स कम क्यों हैं? Due to narrow export base, consumption oriented society, increase in prices of imports, outdated technology and machinery, devaluation, increase in the sick industrial units, technical barriers, tough competition, deterioration in terms of trade, less production of value added goods and political instability. और imports ज़्यादा क्यों होती हैं? Due to capital goods, defense,
rise in oil prices, increase in import payment for fertilizers, disequilibrium in income and prices, structural or chronic changes, technological changes, and due to capital outflows. How to control the adverse balance of payment? A deficit in the balance of payment of a country is adjusted by adopting certain policy measures. Balance of payment can be corrected in two ways: export-led growth, reduction in imports. अभी जो हमने दो मेन कॉजेस पढ़ी हैं उसमें हमारी इंपोर्ट्स ज़्यादा और एक्सपोर्ट्स कम हैं, तो अगर हम उसको कवर कर लें, अगर हम एक्सपोर्ट्स को बढ़ा दें और इंपोर्ट्स को कम कर दें, तो उससे हम एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं. तो एक्सपोर्ट कैसे बढ़ा सकते हैं? लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज से, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स से, मार्केटिंग ऑफ एक्सपोर्टेबल, reducing immoral practices, improving the quality, packing and foreign investment, and reduction in imports. Imports किस तरह से कम कर सकते हैं? Imports of essential items, सिर्फ हम essential items की import करें. Direct control of foreign exchange, establishment of import substitution industries, कि जो चीज़ हमारे कंट्री में प्रोड्यूस नहीं हो रही, हम उस चीज़ की प्रोडक्शन अपने कंट्री में करें, उन इंडस्ट्रीज को एस्टेब्लिश करें. बिसाइड दिस वी हैव ऑल्सो अदर मेजर्स टू कंट्रोल डिसइक्विलिब्रियम और डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट, डिक्रीज इन कंजम्पशन, कंट्रोल ऑफ स्मगलिंग, पॉपुलेशन कंट्रोल एंड एडजस्टमेंट थ्रू कैपिटल मूवमेंट्स. तो इस तरह से हम बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो डिसइक्विलिब्रियम है उसको काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं. सो दैट्स ऑल. थैंक यू. स्टे सेफ.